नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए हम आज बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च की यूनिट 1 रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस डिस्कस करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट, व्हाट इज रिसर्च इन slide number 6. Second objective is what is nursing research in slide number 10. Third, what are the needs of nursing research in slide number 14. Next, list out the scopes of nursing research in slide number 16. Next, what are the characteristics of nursing research in slide number 18. Define EBP or evidence based practice slide number 23 में है। Next, what are the purposes of EBP in slide number 25. Next, list out the steps of evidence based practice in slide number 28. Define scientific methods स्लाइड नंबर 31 में है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन स्लाइड नंबर 33. नेक्स्ट, लिस्ट आउट द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन स्लाइड नंबर 35. डिफाइन रिसर्च प्रोसेस स्लाइड नंबर 39 में है। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड quantitative research process in slide number 43. Next, last one, make a difference between qualitative and quantitative research in slide number 52. Let's discuss about research. Before going into further details, let me introduce the term research. Research actually a compound word. It is composed of two syllables. One is re, another one is search. Re means once again, anew or afresh. Search means to examine closely and carefully, or to test something or to prove. It means it is an organized and systematic way of finding answer to questions. रिसर्च एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस होते हैं जिसके मदद से रिसर्चर को अनआंसर्ड क्वेश्चंस की आंसर मिलते हैं एंड रिसर्चर कोई भी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। Now, definition of research. According to Ruth French in 1968, research essentially a problem-solving process, a systematic, intensive study directed towards full scientific knowledge of subject studies. इसके मतलब है रिसर्च एक सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस में हम जो भी सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में डीपली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जो रिसर्चर को साइंटिफिक नॉलेज देते हैं, साथ में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर the problem. Next definition, according to J.W. West in 1969,
Research may be defined as the systematic and objective analysis and recording of controlled observation that may lead to the development of generalization, principles, theories, resulting in prediction and possible ultimate control of events. Actually, it is the systematic, in-depth explanation of controlled observation which helps to develop principles, theories and also control the situations. मतलब रिसर्च एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग को डेप्थली इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड वो हमें प्रिंसिपल्स, थ्योरीज बनाने में मदद करते हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लोवर एंड बल्सले in 1979, research is the process of systematically obtaining accurate answers to significant and pertinent questions by the use of the scientific method of gathering and interpreting information. रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें हम मीन्स रिसर्चर सिस्टेमेटिकली साइंटिफिक मेथड्स की यूज करके एक्यूरेट आंसर ढूंढ सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए. लेट्स डिस्कस अबाउट नर्सिंग रिसर्च. Definition of nursing research. According to Walls and Wassel in 1981, nursing research refers to the use of systematic, controlled, empirical and critical investigation in attempting to discover or confirm facts that relate to specific problem or question about the practice of nursing. नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टेमेटिक कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन होते हैं. इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम में रिसर्चर को बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मिलते हैं एंड वो ऑब्जर्वेशन रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू आइडियाज सो दैट इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इन 1986. Nursing research is a way to identify new knowledge, improve professional education and practices and use of resources effectively. नर्सिंग रिसर्च एक मेथड है जो न्यू नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं, ओल्ड नॉलेज को जज करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड स्किल को सुधारते हैं. Based on those previous slides, I prepared practice question. So let's see the first question. What is the most objective means of identifying and obtaining new nursing knowledge? There are total 4 options. First one is trial and error. B. Tradition. Third one is nursing research. And last one is authority. So the answer will be nursing research, because in previous slide also we observed that nursing research एकमात्र ऐसा एक मेथड है जो प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाते हैं. सो नर्सिंग रिसर्च होगा इस क्वेश्चन का आंसर. लेट्स डिस्कस अबाउट नीड्स ऑफ nursing research. First need, improve quality of nursing care. How nursing research will improve the quality of nursing care? As you know or as all know that research or nursing research
help us to develop new procedures, new technology. At the same time, it improve professional knowledge, skills. So automatically it will help the patients by providing quality care. Next, enhance the professional knowledge. नर्सिंग रिसर्च प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाते हैं, इसलिए हम पेशेंट्स को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पाते. नेक्स्ट, प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. रिसर्च हमेशा एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो एविडेंस हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं और हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम सेंट्रल लाइन से ब्लड कलेक्ट करते हैं, इस टाइम में हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है. हाउ टू मेंटेन द एसेप्टिक टेक्निक वाइल कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम सेंट्रल लाइन. वो प्रोटोकॉल है एविडेंस, एंड दिस एविडेंस वी आर फॉलोइंग or we are applying in our daily practice. Next need is for the growth of nursing profession. As you all know that nursing research will increase the professional knowledge, skill, so it will upgrade the nursing profession also. Next, enhance the accuracy of educational nursing. Educational nursing को accurate बनाते हैं. क्लिनिकल टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग इन्वेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट सॉल्व द पेशेंट केयर प्रॉब्लम. अगर हम पेशेंट को क्वालिटी केयर देते हैं, पेशेंट की नीड्स को समझते हैं, तो हम पेशेंट केयर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होगा, इस प्रॉब्लम को भी हम नर्सिंग रिसर्च की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. लास्ट वन, help to solve the administrative problem of nursing field. Administrative department actually facing various issues or problem. To solve these issues or problem, nursing research has huge role. Issues like recruit करना employees को, employees की salary देना, performance appraisal करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंटेन करना. इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए नर्सिंग रिसर्च बहुत नीडफुल है. लेट्स डिस्कस द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च. फर्स्ट स्कोप इज नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस. मतलब क्लिनिकल एरिया में नर्सिंग रिसर्च का क्या स्कोप है. अगर हम देखें, कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन को हम एग्जामिन कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल, पीक लाइन ड्रेसिंग टेक्निक. नेक्स्ट, हम हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, इलनेस प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. एज वेल एज नर्सिंग रिसर्च इज यूजफुल इन एंड ऑफ लाइफ केयर, for geriatric care. Now, second scope, nursing education. In nursing education, how the nursing research help? By the help of research, we can judge the old teaching method, as well as we can generate the new teaching skill. Also, we can solve the problem or issues related to teaching learning process, and we can promote clinical and classroom teaching for students. Third scope is nursing administration. पहले भी मैंने आप लोग को नीड्स में बताया है, स्टिल अभी फिर से बता रही हूँ कि स्कोप क्या क्या हो सकता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में. नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, परफॉर्मेंस अप्राइजल, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट ऑफ द स्टाफ. इसी इश्यूज़ को इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं नर्सिंग रिसर्च की मदद से. नेक्स्ट और लास्ट स्कोप इज़ हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर. हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर में
हम जो रिमोट एरियाज में और हिली एरियाज में जनरल पॉपुलेशंस रहते हैं, इसी जनरल पॉपुलेशंस को कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन डिलीवर accessible health care to all the general population, and we can use technology to provide healthcare services to the remote area. Let's discuss about characteristics of nursing research. Orderly and systematic process. इसका मतलब है नर्सिंग रिसर्च हमेशा वेल प्लान एंड लॉजिकल होना पड़ेगा. अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते या कोई भी काम करते हैं, उस काम को फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए हमें प्लान करके चलना पड़ता है. सेम फॉर रिसर्च, इट शुड बी इन वेल प्लान्ड. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज. नर्सिंग रिसर्च तब भी यूजफुल होते हैं और बेनिफिशियल्स होते हैं अगर रिसर्चर करंट प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस करके रिसर्च कंडक्ट करते हैं. एज फॉर एग्जांपल, नाउअडेज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना पैंडेमिक. इफ ए रिसर्चर wants to conduct a study based on corona, then it will be beneficial for general population. Third characteristic is begin with clearly defined purposes. रिसर्च शुरू करने के पहले रिसर्चर के दिमाग में गोल सेट होना चाहिए कि हम वो ये रिसर्च क्यों कंडक्ट करना चाहते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट, और कितना बेनिफिट देंगे जनरल पॉपुलेशन के लिए और बाकी रिसर्चर के लिए कितना बेनिफिशियल होगा. फोर्थ, एम्फेसाइज टू डेवलप, refine and expand professional knowledge. Nursing research helps the nurses to develop the knowledge, to clarify the knowledge, as well as expand the knowledge, spreading the knowledge or increasing the range of knowledge. Next, research should help to develop or test theory. Research always based on theories, and research theories को testing भी करते हैं. As for example, अगर एक रिसर्चर स्टडी करना चाहते हैं नर्सेस की बिहेवियर towards their patients, in this research study, researcher can develop Papillon's interpersonal theories, or researcher can test Papillon's theory in his research study. Next characteristic is a good research is conducted on representative sample. एक रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर कंडक्ट होता है. नाउ व्हाट इज सैंपल? सैंपल होते हैं एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं. एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर कोई रिसर्चर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो उनका सैंपल होगा नोज़ोकोमियल पेशेंट. As for example, 10 nosocomial patient in ICU department. Next, it should conducted through appropriate use of methods and tools of data collection. Research always use techniques and instrument for collecting data. Methods mean techniques, tools means instrument that helps the researcher to collect the information from the sample, like questionnaires, checklist, survey method,
These are the tools. Next, research should use of valid and reliable data collection tools. आप लोगों ने पहले भी देखा है कि डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होते हैं जिसके मदद से हम सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. अभी क्वेश्चन है वो टूल्स कैसा होना चाहिए. टूल्स होना पड़ेगा लॉजिकल मीन्स वैलिड, जिसके पीछे कोई रीज़न होगा, एंड रिलायबल. रिलायबल मतलब ट्रस्टफुल. नेक्स्ट, इन द रिसर्च appropriate methodology should use. Methodology means study of methods. इसके मतलब है जो रिसर्च स्टडी हम करेंगे, क्या वो रिसर्च स्टडी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे, या हम नॉन एक्सपेरिमेंटल करेंगे, या हम इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जस्ट हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल्स को ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट, फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. शुरू से हम देख के आ रहे हैं कि रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. एज फॉर एग्जांपल, इन्वेंट वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस. दिस इज द प्रॉब्लम कोरोना वायरस. सॉल्यूशन इज इन्वेंट द वैक्सीन. नेक्स्ट characteristic is dedicated to develop evidence. Previously also मैंने आप लोग को बोला है कि रिसर्च हमेशा एविडेंस प्रोवाइड करते हैं. सो इधर भी कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा इट इज डेवलप एविडेंस. नेक्स्ट इज स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. हमेशा एक रिसर्चर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन from samples so that it can give fruitful result for research study. Next, follow an objective and logical process. Research should be logical. There should be some reason. Last one is generate findings to refine and improve professional practice. As you know, research findings is helpful for improving the professional knowledge and practice. Practice question. प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बेस करके मैंने और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं. चलिए देखते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है. Which of the following is not true about the characteristics of good research? 4 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज orderly and systematic process. सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टेड यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स. थर्ड ऑप्शन है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. लास्ट ऑप्शन है बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस. चारों ऑप्शंस में सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिसर्च करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की ज़रूरत नहीं होते हैं. हम और रिसर्चर लेस अमाउंट ऑफ फंड्स में भी रिसर्च कर सकते हैं, इसलिए हम रिसर्च को कॉस्ट इफेक्टिव भी बोलते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. डेफिनेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग is a process of locating, appraising and applying the best evidence from the nursing and medical literature to improve the quality of clinical nursing practice. इसके मतलब है बेस्ट एविडेंस जो अवेलेबल है उसको यूज़ करके क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में डिसीजन मेक करना. मतलब हमारी क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस का डिसीजन हम डेवलप कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बेस्ट एविडेंस. Purposes of evidence-based practice. Healthcare professional
can make decision by using such evidence. Next, it eliminates unsound or excessively risky practices in favor of those that have better outcomes. Next, EBP helps the nurses to provide highest quality and most cost efficient nursing care possible. फर्स्ट पर्पस देखते हैं. इन डेफिनेशन ओनली हम लोगों ने पढ़ा है कि बेस्ट एविडेंस यूज करके हम डिसीजन मेक कर सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के पेशेंट आते हैं तो एज ए नर्स जब हम कोरोना वायरस की पेशेंट को केयर करते हैं, इसी टाइम में हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं नर्सेस के लिए एविडेंस, एंड इसी एविडेंस को फॉलो करके हम डिसीजन बना सकते हैं. नेक्स्ट, इट एलिमिनेट अनसाउंड और एक्सेसिवली रिस्की प्रैक्टिसेस इन फेवर ऑफ दोज दैट हैव बेटर आउटकम. जो भी रिस्की प्रैक्टिसेस होते हैं, जो पेशेंट्स के लिए रिस्की होते हैं, इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एविडेंस. Last one is EBP helps the nurses to provide highest quality and most cost efficient nursing care possible. By the help of evidence based practice, we can provide cost effective care to patient. Next, it has contributed a lot towards better patient outcome. इसके मतलब है पेशेंट्स की आउटकम और पेशेंट्स इवैल्यूएशन अच्छे होते हैं अगर हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज करते हैं इन आवर डेली नर्सिंग प्रैक्टिस. नेक्स्ट वन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस allows nurses to enrich their clinical training and experiences with up-to-date research. Evidence-based practice allows the nurses to upgrade their knowledge by the help of clinical training. Let's discuss the step of EBP. First step, formulating a clear question based on a clinical problem. It means researcher can develop the question which should be follow risk assessment data. As for example, increase incidence of pressure ulcer among patient in ICU. Next step, literature review to search best available evidence. एज ए रिसर्चर जो भी प्रीवियस रिसर्च स्टडी होते हैं सेम टॉपिक के ऊपर, उसको रिव्यू करना पड़ते हैं सो दैट उसी रिसर्च स्टडी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रिसर्चर एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूज ऑफ बेस्ट एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. जब रिसर्चर को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एविडेंस के पता चल जाते हैं, उससे जो बेस्ट एविडेंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ करते हैं. एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएटिंग द एफिकेसी ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस. जो ऑब्जर्वेबल एविडेंस मिले हैं उसकी इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑडिट, पीयर रिव्यू. Let's discuss about scientific methods of nursing research. Scientific method. It is a standardized way of making observation, gathering data, forming theories, testing prediction and interpreting result. Scientific method हमारे रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है.
साइंटिफिक मेथड एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं, इस डेटा से थ्योरीज और मॉडल्स डेवलप करते हैं, एजम्पशंस को, बिलीव्स को, प्रेडिक्शंस को टेस्ट करते हैं, एज वेल एज एक्सप्लेन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को. लेट्स डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. फर्स्ट, orderly and systematic process. It is very simple. Scientific method should be well planned and logical. Next, control external factors. It means scientific method help the researcher to control external variables which is not directly included in the study. Example, relationship of co-workers should not affect patient care. Third, findings are based on empirical evidence. So scientific methods finding always follow evidence or observable evidence. Next, finding of scientific methods should be generalized. साइंटिफिक मेथड के जो फाइंडिंग्स होते हैं इसको कंसंट्रेटेड नहीं करना है, जनरल पॉपुलेशन और बाकी लोगों के साथ स्प्रेड करना है. नेक्स्ट, कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट थ्योरीज. अगेन सेम थिंग, साइंटिफिक मेथड हेल्प्स टू डेवलप और टेस्ट थ्योरीज. नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन और हाइपोथेसिस. एजम्पशन एक बिलीफ होते हैं जिसको हम फॉलो करके आते हैं, जिसके लिए कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं होते हैं. एग्जाम्पल, गॉड एग्जिस्ट. और भी अगर एग्जाम्पल बोले, प्रेयर हमेशा करने से हमारा स्पिरिचुअलिटी इम्प्रूव होते हैं, हमारे थिंकिंग अच्छे होते हैं. नेक्स्ट, हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होते हैं जो दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करते हैं. वेरिएबल्स होते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन और एनी थिंग्स. एग्जाम्पल, स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर. स्मोकिंग one variable, lung cancer is one variable. अगर कोई पर्सन स्मोक करते हैं तो उनमें लंग्स कैंसर होने का चांसेस है. सो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं रिलेशनशिप को दोनों वेरिएबल्स की. और भी अगर हम एग्जांपल देखें, लोअर द ब्लड शुगर लेवल लेसर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट. अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल कम होते हैं तो इन्फेक्शन होने का भी चांसेस कम है डायबिटिक पेशेंट में. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. फर्स्ट स्टेप, सिलेक्टिंग द टॉपिक and identifying the problem. Selecting the topic and identifying the problem. First, researcher एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, इसी प्रॉब्लम से टॉपिक बनाते हैं. एग्जाम्पल, रिसर्चर अगर सोचते हैं कि वो स्टडी करना चाहते हैं मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर, दिस इज द प्रॉब्लम, टॉपिक विल बी मॉर्निंग सिकनेस रिलेटेड कोई सिम्टम्स को प्रिवेंशन करना. एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन प्रिवेंशन ऑफ मॉर्निंग सिकनेस एमंग प्रेग्नेंट लेडी. These are the topic. Next, defining the objectives of the study. Objectives होते हैं goals, मतलब
ऑब्जेक्टिव्स पहले रिसर्चर को गाइड कर देते हैं कि वो रिसर्च क्या अचीव करना चाहते हैं और फ्यूचर में क्या रिजल्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, रिव्यू द लिटरेचर फ्रॉम थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडीज। रिसर्चर को प्रीवियस रिसर्च स्टडी रिव्यू करना पड़ेगा उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जज करने के लिए। नेक्स्ट, डिफाइनिंग concepts and variable to be studied. After reviewing the literature, researcher can define the variables. Variables means any qualities or characteristics of a person, things. Next, stating hypothesis about expected observation or phenomenon to be studied. वेरिएबल्स को डिसाइड करने के बाद रिसर्चर ऑटोमेटिकली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। हाइपोथेसिस इसलिए फॉर्मुलेट करेंगे जो वेरिएबल्स उन्होंने डिसाइड किया है उसका रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करने के लिए। एज फॉर एग्जांपल, एल्कोहलिज्म कॉज लिवर सिरोसिस। सो in between alcoholism and liver cirrhosis there is positive relationship. This relationship is predicted by hypothesis and इसी hypothesis को हम statistically prove करेंगे। Next, identifying assumptions and implications. Assumptions and implications को identify करेंगे। Assumption is belief. Next, determining the ethical implication of proposed study. जो proposed study है उसकी ethical implication, ethical principle को follow करना पड़ेगा research study conduct करने के लिए, क्योंकि nursing research study humans के ऊपर किया जाते हैं तो इसलिए researcher को informed consent लेना पड़ेगा before conducting any research study. Next, describing the research design and methods of data collection. At last, design describe करेंगे and techniques, data collection का techniques develop करेंगे. Methods of data collection like experimental, non-experimental, research design. Next, defining study population and samples. Study population and sample को define करेंगे. Population means entire individual वो shows similar characteristics and sample means subset of population. अगर कोई researcher respiratory tract infection ऑफ आईसीयू पेशेंट के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो आईसीयू पेशेंट उनकी पॉपुलेशन होगा, सैंपल होंगे वही पेशेंट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सब्जेक्ट, उसी सैंपल से डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि क्वेश्चनियर्स, सर्वे, इंटरव्यू। डेटा कलेक्शन जब सब्जेक्ट से किया जाता है या सैंपल से किया जाते हैं वो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस होते हैं। सो डेटा कलेक्शन इन रिसर्च इटसेल्फ इज ए ह्यूज टॉपिक। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। एनालिसिस मीन्स एग्जामिनिंग द समथिंग। हम डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोडिंग, कंपेयरिंग कर सकते हैं डेटा को, एज वेल एज हम इसको स्टेटिस्टिकली प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटिस्टिकली प्रूफ करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे रिसर्चर्स इन टेबुलेशन फॉर्म, इन चार्ट, इन ग्राफ। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडीज। स्टडीज रिलेटेड जितने भी फाइंडिंग्स हैं इसको
डिसेमिनेट और स्प्रेड करेंगे। किस में करेंगे? जर्नल्स में करेंगे, इंटरनेशनली डिसेमिनेट करेंगे, रिसर्च थीसिस लिखेंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रोसेस। Definition of research process. Research process consists of series of actions or steps necessary to effectively carry out research. It involves identifying, locating, assessing and analyzing the information need to support the research question and then developing, expressing ideas. This process is helping the nursing for upgrading knowledge. रिसर्च प्रोसेस एक सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, एसेस करते हैं। किस लिए करते हैं आइडेंटिफाई एंड एसेस? रिसर्च क्वेश्चंस की आंसर देने के लिए, रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड साथ में नर्सिंग नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, सेकेंड टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। नाउ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च is a formal, objective and systematic process for gathering information about the world. It is conducted to describe new situation, events or concepts. The data is collected and quantified and then statistically analyzed, often with the view to establish cause and effect relationship among the variables. क्वांटिटेटिव रिसर्च एक फॉर्मल सिस्टमेटिक प्रोसेस होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। इन प्रोसेस में डेटा को रिसर्चर ट्रांसलेट करते हैं नंबर्स में, क्वांटिफाइड मीन्स नंबर्स में ट्रांसलेट करते हैं एंड स्टेटिस्टिकली एग्जामिन करते हैं। किस लिए करते हैं? टू ऑब्जर्व द cause and effect relationship among the variables. As for example, obesity cause cardiac disease. So obesity is the cause, effect is cardiac disease. और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। जंक फूड कॉज ओबेसिटी। तो जंक फूड किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं? ओबेसिटी के ऊपर। अगर आप जंक फूड नहीं लोगे तो आपको ओबेसिटी होने का चांसेस कम है। तो रिलेशनशिप को देखने के लिए क्वांटिफाइड मेथड में जो रिसर्च किया जाते हैं इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स डेवलपिंग प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक ब्रॉड एरिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्चर हमेशा प्रॉब्लम बनाते हैं, ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करते हैं, इसी प्रॉब्लम से आफ्टर दैट टॉपिक डिसाइड होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं इसकी। एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन एफिशिएंसी ऑफ ओरल मॉर्फिन in management of chronic cancer pain among advanced stage cancer patient admitted in palliative care. This is the quantitative research problem example. अगर एक रिसर्चर इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं ओरल मॉर्फिन का क्रॉनिक कैंसर पेन को मैनेज करने के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। गोल सेट करना पड़ते हैं।
कैसे हम गोल सेट करेंगे? जैसे कि हमारी रिसर्च स्टडी है एफिशिएंसी ऑफ ओरल मॉर्फिन इन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कैंसर पेन एमंग एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर पेशेंट। हम ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट कर सकते हैं कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर, then how morphine manage the pain of cancer. These are the goals or objective we can set. Next, review of literature. Review of literature means study the previous literature on same topic. Next, developing conceptual framework. Conceptual framework develop करना, theories develop करना based on the research topic. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन। हमने पहले भी बोला है कि हाइपोथेसिस मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अगर हम सेम एग्जांपल भी देखते हैं, सेम एग्जांपल में मैंने आप लोग को बताया था एफिशिएंसी ऑफ ओरल मॉर्फिन इन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कैंसर पेन। तो हाइपोथेसिस क्या होगा? ओरल मॉर्फिन हैज पॉजिटिव इफेक्ट फॉर मिनिमाइजिंग chronic cancer pain. Next, selecting research approach or design. What is research design? Research design एक framework होते हैं जो रिसर्चर को बताते हैं कैसे रिसर्च करना है, कहाँ पे रिसर्च करना है, कौन कौन सैंपल लेना है, कौन सा मेथड्स लेना है। जैसे हम बिल्डिंग्स बनाने के पहले डिज़ाइन करते हैं, सेम रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के पहले रिसर्चर को डिज़ाइन सोचना पड़ता है। इस क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में रिसर्च डिज़ाइन हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करते हैं। पॉपुलेशन मीन्स एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे स्टडी का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। एग्जाम्पल, बेडसोर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू। सो आईसीयू पेशेंट जो होते हैं वो एक रिसर्चर के लिए क्या है? पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, डेवलपिंग टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। डेवलपिंग टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन बहुत लेंथी प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एक्ट एज ए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग एथिकल consideration. Ethical consideration means follow or establish the ethical principles or ethical regulations, rules and regulation. Like before conducting the research, a researcher should take informed consent from sample. By force or forcefully कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं कराना चाहिए. This is the punishable offense. रिसर्च कंडक्ट करने के पहले ऑथोरिटी से एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी होता है. रिसर्च में कोई भी प्लेगरिज्म और डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए. दिस इज द एथिकल कंसिडरेशन. नेक्स्ट, कंडक्टिंग पायलट स्टडी और ट्राई आउट ऑफ टूल. सो पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी मतलब मेन रिसर्च स्टडी करने के पहले रिसर्चर एक स्मॉल स्केल स्टडी करते हैं सैंपल को लेके, स्मॉल सैंपल को लेके, जिसमें वो सैंपल हमारे मेन स्टडी में ज्वाइन नहीं करते और मेन स्टडी में पार्ट नहीं लेते. पायलट स्टडी इसलिए किया जाते हैं चेक करने के लिए कि जो मेथड्स, जो टूल्स और टेक्निक्स रिसर्चर अप्लाई करेंगे वो रियली इफेक्टिव होगा या नहीं होगा. नेक्स्ट, सैंपल सिलेक्शन. सैंपल सिलेक्शन, सैंपल मीन्स सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. जैसे कि नोजोकोमियल 10 nosocomial infection patient in ICU. This will be the sample for researcher. Next, data collection. Data collection process
करना, क्वेश्चन से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द लेंथी प्रोसेस. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस. डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस के टाइम में जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसी डेटा को हम कोडिंग कर सकते हैं टू identify the answer, or coding can be carried out manually on a MS Excel sheet. Next, analysis and interpretation of the data. डेटा को हम एग्जामिन कर सकते हैं मीन मीडियम मोड, जिसको हम डेस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, एंड इसी डेटा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं टेबल, ग्राफ और चार्ट की मदद से. नेक्स्ट, डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग. रिसर्च फाइंडिंग को स्प्रेड और कम्युनिकेट करना. पहले भी मैंने आप लोग को बताया, रिसर्च फाइंडिंग जब तक कम्युनिकेट और डिसेमिनेट नहीं होता है तब तक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होता है. एंड एक रिसर्चर को वो भी चीज़ याद रखना है, जब तक रिसर्च बेनिफिशियल नहीं होगा तब तक इस रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है. तो रिसर्च को डिसेमिनेट और स्प्रेड करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, रिसर्चर को थीसिस लिखना पड़ता है, आर्टिकल्स लिखना पड़ते हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कम्युनिकेट करना पड़ते हैं इन इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन के ऊपर बेस करके. नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू. क्वालिटेटिव रिसर्च is a systematic and subjective approach to describe events or life experience and to give them intended meanings. It is committed to the naturalistic perspective, to the interpretative understanding of human experiences. It not only helps to unearth hidden facts but also to exploring attitudes, emotions, beliefs, sensitive issues, opinions, concepts, process and relationship of people. Data can be collected by asking people interview, survey and observation. Qualitative research कंडक्ट किया जाते हैं ह्यूमन्स एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन्स की रिलेशनशिप, बिलीव्स, इमोशंस, ओपिनियंस, कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए. क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर को वेरिएबल्स के बारे में आइडियाज़ नहीं रहते, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज ए लेंथी रिसर्च. Qualitative research data can be collected by survey method, by observation or by group interview. एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. A researcher is conducting a study on experience of female who have underwent female feticide in selected rural and urban area of Rajasthan. अगर कोई रिसर्चर एक स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं फीमेल्स के एक्सपीरियंस के ऊपर रिगार्डिंग फीमेल फेटिसाइड, इन दिस स्टडी रिसर्चर विल अंडरस्टैंड द फीमेल्स ओपिनियंस अबाउट फीमेल फेटिसाइड. और वी कैन जस्ट गिव वन अनदर एग्जाम्पल, ह्यूमन एक्सपीरियंस or human opinions about coronavirus pandemic. This will be the one another example of qualitative research process. Next, steps of qualitative research process. Identifying research problem area. Identifying research problem area means selecting the topic. Next, formulating broad study objectives, developing the goals, review of literature, study previous research on same topic,
नेक्स्ट, एंट्री इन द रिसर्च सेटिंग। इन क्वालिटेटिव रिसर्च जब भी कोई रिसर्चर को रिसर्च सेटिंग्स में एंटर करना पड़ते हैं तो इसके लिए प्रायर परमिशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग का इमोशंस, रिलेशनशिप्स को लेके रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच और डिज़ाइन। आफ्टर those steps, next step is selecting the design. In qualitative research, research design may be phenomenological research design. Phenomenological research means human experience and relationship between social life. As for example, human opinions about tsunami. These are the research design for qualitative research. Next, select a small sample. In qualitative research study, researcher has to take small sample because it is lengthy study. So, if we take large sample, तो researcher के लिए एक bias create हो जाएगा, पूरा total study conduct नहीं हो पाएगा. It will take long time. Next, एस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशन। सेम थिंग, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलोज करना है, क्योंकि हम नर्सिंग रिसर्च में ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिसर्च करते हैं मेनली। इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, अथॉरिटीज़ की परमिशन लेना है, कोई डुप्लीकेसी नहीं करना है जब हम डेटा को स्टेटिस्टिकली प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट प्लान करना है, जैसे कि हम पहले भी देखा है, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, दिस इज द टूल्स फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्टिंग इज itself a huge procedures, so data will be collected by these tools like videotaping, photograph, tape recorder. Next, organizing data for analysis. In this qualitative research, data can be examined or analyzed by listing, categorizing, comparing. Next, analysis and interpretation of the data. Analysis of data means statistically analyze the data by narrations, by coding, by words, and explaining the data. Last, disseminating the research finding, communicating the research finding with general population by thesis, by articles. Let's discuss about difference between qualitative and quantitative research. First difference, objective approach to seek precise measurement in numerical form. In qualitative research, subjective approach to seek in depth description in narrative form. Quantitative research में हम लोगों ने देखा था कि इसमें डेटा कलेक्ट करने के बाद इसको ट्रांसलेट करते हैं नंबर में एंड उसके साथ इसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं. This is objective approach. Why it is objective approach? This because quantitative research is not influenced by pupil emotions, pupil experience, pupil feelings. In qualitative research, this is subjective approach. Why it is subjective approach? Because researchers is studying human mind, humans relations in a descriptive manner. Next difference, in quantitative research, variables are clearly understood and defined in advance by the researchers. Previously also I explained, in quantitative research, researcher can understand the variables clearly in advance, but in the case of qualitative research, researcher may have only rough ideas about variables. अगर हम इसका examples लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में अल्कोहल कॉज लिवर सिरोसिस, सो वेरिएबल्स अल्कोहल एंड लिवर सिरोसिस,
वो शुरू से पहले से रिसर्चर को पता चलता है। बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ जनरल पॉपुलेशन रिगार्डिंग साइक्लोन, तो इसमें वेरिएबल्स के बारे में रिसर्चर को एक रफ आइडियाज़ होता है, ना कि क्लियर आइडियाज़ होते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च प्रॉब्लम डज नॉट चेंज over the course of the study. In qualitative research, research problem constantly reformulated during the course of the study. In quantitative, research problem को हम change नहीं कर सकते, but in qualitative, constantly we can reformulate the रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पहले बोले थे कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में वो लेंथी होते हैं। इवन कभी कभी रिसर्चर्स भी पेशेंस नहीं रहते रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, इसीलिए कॉन्स्टेंटली रीफॉर्मुलेटेड करना पड़ते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इज एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। In qualitative research, design is phenomenological and case study. Experimental means एक scientific sophisticated research method होते हैं। In this research method, researcher examine the effect of independent variable on the dependent variable, जहाँ पे independent variable को manipulate और change कर सकते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देख सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, एफिशिएंसी ऑफ क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश ऑन द प्रिवेंशन ऑफ माउथ अल्सर एमंग पेशेंट्स एडमिटेड इन जनरल वार्ड। सो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, डिपेंडेंट वेरिएबल है माउथ अल्सर। सो क्लोरहेक्सिडेंट माउथ वॉश की अमाउंट्स को हम मैनिपुलेट और चेंज कर सकते हैं एंड इसकी जो इफेक्ट होगा वो दिखाई देगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। नेक्स्ट, नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल मीन्स इन दिस रिसर्च स्टडी रिसर्चर ऑब्जर्व द फेनोमेनन एज दे ऑकर नेचुरली। नो एक्सपेरिमेंट, no changes, no manipulation. Example, researchers conduct a study on the awareness of HIV/AIDS among adolescents studying in selected rural school. नॉन एक्सपेरिमेंटल में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं होते वेरिएबल्स के बीच में, जब ओनली नेचुरल फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल में भी मैंने सेम थिंग्स बताया आप लोग को कि अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS एमंग एडोलेसेंस, सिर्फ एडोलेसेंस के जो आइडियाज़ ऑफ अवेयरनेस होते हैं HIV/AIDS के बारे में उसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च। रिसर्च डिज़ाइन इज फेनोमेनोलॉजिकल, केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन। फेनोमेनोलॉजिकल मीन्स relationship between states of individual consciousness and social life, or individual awareness is implicated in the production of social life, social situation and social world. Example, phenomenological study on live experience of tsunami victim on Tamil Nadu village. फेनोमेनोलॉजिकल मतलब इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल की आइडियाज़ एंड सोशल लाइफ की रिलेशनशिप देखना। नेक्स्ट, केस स्टडी। केस स्टडी मीन्स इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पीपल, प्लेस और इंस्टीट्यूशन। हम नर्सिंग क्लिनिकल ड्यूटीज़ में भी हम केस स्टडी करते हैं। केस स्टडीज़ में पेशेंट्स के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और एग्जांपल में अगर हम ले सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ कैसे पेन को मैनेज करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस, दिस कैन ऑल्सो बी ए केस स्टडी। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन।
हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन इज केयरफुल स्टडी एंड एनालाइज करना डेटा को रिलेटेड टू पास्ट इवेंट, जितना भी पास्ट इवेंट रिलेटेड डेटा है उसको स्टडी करना एंड उसको एग्जामिन करना. एग्जाम्पल, ए हिस्टोरिकल स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन ICU. Quantitative research we can conduct or researcher can conduct in larger samples. For qualitative research, researcher can conduct the study in small size sample. Next definition, differences, quantitative research and qualitative research. Data easier to collect, facilitate the testing of hypothesis. In quantitative research, data collection from the sample is very easy compared to qualitative data, and researcher can test the hypothesis. But in qualitative research, this is lengthy research, time consuming research. Next, quantitative research tools is structure or semi-structured tool such as questionnaire. क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हम क्वेश्चनियर्स एज ए टूल यूज कर सकते हैं. क्वालिटेटिव के लिए इसे इट इज लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड लाइक ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट डिफरेंस, एनालिसिस बाय डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. Descriptive or inference statistics means mean, median, mode, standard deviation. Qualitative research, analysis by words, pictures or objects through coding, narrations. जो भी वर्ड हो गया, पिक्चर्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स एंड नरेशंस के हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं. Practice question 3. Based on this slide, I prepare one practice question, that is, which design is come under qualitative research? Experimental, phenomenological, quasi-experimental, non-experimental. In previous slide, we have seen that qualitative research design is phenomenological. So the answer will be phenomenological. What is phenomenological? It is the relationship between individual consciousness and social life. Very simple. Now let's discuss about qualities of researchers. Qualities. Research oriented means हमेशा research जब conduct करेंगे research के ऊपर ही focus होना है. Next, efficient. Scientific. Next, scientific means researcher should use scientific methods. Effective. Next qualities is effective. Next, active. Next is resourceful. Resourceful means researcher knows how clearly, cleverly, quickly conduct a study or quickly solve the problem. Next, creative. Next, honest. ऑनेस्ट होना एक रिसर्चर का बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर एज ए रिसर्चर किसी और रिसर्चर का स्टडी कॉपी करते हैं एंड इसको रिसर्चर हम हमारी स्टडीज़ में अप्लाई कर लेते हैं, सो इट इज़ नोन एज ए प्लेगरिज्म एंड इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस. नेक्स्ट, इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मीन्स रिसर्च करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स का कोई ज़रूरत नहीं होता है. लेस फंड्स में भी वी कैन कंडक्ट आवर स्टडी. रिलीजियस. नेक्स्ट, रिलीजियस, वी शुड नॉट हार्म एनी वन इन द रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज हमने रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस डिस्कस किए हैं. यदि आपको कुछ समझने में परेशानी आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. धन्यवाद.